Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And on these particular tutorials, we will learn about the predicate logic under the artificial intelligence and the logic lab with the everyday videos with the different parts. This is the next part of the artificial intelligence and this is the part number 4. The part number 1, 2, 3 already available on this channel and in the playlist. So those students who don't see the artificial intelligence parts under the logic lab, and this is the part of the predicate logic, and this is the very important part as per the aspect of the knowledge representation, that when we will have only the true values we will forward into the knowledge representations, and when we will don't have the true values then we will backward into the another videos. So all the videos available in this channel under the playlist. So those students who don't see the previous parts, kindly see the previous parts, and after that you will shift into that part. That is the very important part as per the aspect of the simple standard English language, that like the syllogistics under translation into the predicate logic. Like that, when you will retranslate the standard English language words into the Hindi, and it will given the knowledge representation to those students who only knows the native language like Hindi, Punjabi, Tamil, Gujarati and the Marathi and the other languages of the Indian students. So the first sentence of the standard English language is the Julia is happy, and when we will convert into the FOPL rule, that is the first order predicated logic rule, in this we will show the true values, false values and the conjunction, disjunction and the implication, double implication and the negation. All values are there with the quantifiers also available, that is all exist, and the sum. For the sum we will take this symbol, and for the all we will take this symbol. So in this the sentence is very simple, that Julia is happy. For the happy we will take the constant here, or this is the H and the J is the variable from the Julia. There is no assumption, यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं गया, all है, sum है या कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ नहीं बोला गया ना, वेरी सिंपल. तो इसको आप नोटेशन वाइज ट्रांसलेट करके ऐसे लिख सकते हो. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज द ऑस्कर एंड फ्रेंजी आर बोथ द डॉग्स. That Oscar is the name and Frenzy is the name, but the name of the dogs. There are two constant values, है ना, the Oscar and the Frenzy, but the both category is supported with the category dogs. Both the category has premises with the dogs. The both are the dogs. Oscar and Frenzy are the dogs. And Oscar के लिए हम ले लेंगे O, and Frenzy के लिए हम ले लेंगे जो है F. And the variable given, जो हमने इसको अब पास ऑन करना है आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट पास ऑन हो जाएगा. जैसे dx है तो x किसके लिए यूज हो सकता है, डॉग के लिए. मान लो कि आगे जाके assumptions बढ़ रही है ना, तो फिर उसको भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो d ऑफ x हम उसके लिए यूज करेंगे जब assumptions बढ़ जाए. मान लो क्वांटिफायर उन्होंने बोल दिया हो तो फिर यूज करेंगे. यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है d ऑफ x की, तो यहाँ पे हम सिंपल d यूज कर रहे हैं फॉर द ऑस्कर. एंड बोला है तो दिस इज द सिंबल ऑफ एंड फ्रेंजी आर बोथ डॉग्स. सो दिस इज द असम्पशन, वेरी सिंपल. आप जब आप पिछली वीडियो सारी देख लोगे तो आपको भी बहुत सिंपल पार्ट लगेगा. सो द नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विद द वेरी सिंपल सेंटेंस ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज. दिस इज द एवरी डॉग इज हैप्पी. अब एवरी की बात हो गई है तो मतलब ऑल की बात हो गई है कि ऑल डॉग आर हैप्पी हो सकते हैं ना. एवरी डॉग इज हैप्पी है. ऑल के लिए हमें सिंबल हम यूज करते हैं क्वांटिफायर, जो है हमारा ये वाला ऑल का सिंबल है. एंड अभी मैंने आपसे बात की ना कि डॉग के लिए हम ले रहे हैं, अगर ज़्यादा है ऑल क्वांटिफायर्स यूज हो जाएं अगर, तो फिर हमें एक्स की वेरिएबल की वैल्यू लेनी पड़ेगी कि डॉग ऑफ एक्स. हमें नहीं पता कितने डॉग हैप्पी हैं, तो हम इस तरह से assumption ले लेंगे कि फॉर एवरी एक्स, इफ एक्स इज हैप्पी, है ना, इफ डॉग इज हैप्पी देन एक्स इज ऑल्सो हैप्पी. हमें नहीं पता ना कितने डॉग्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ऑल की बात ये है. तो यूनिवर्स रूल है कि डॉग्स की जो नेचर है वो गुड होती है और वो हैप्पी नेचर के होते हैं, इम्प्लीकेशन है, तो फिर ये यहाँ पे आ गया. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज सम फ्रेंड इज लविंग एंड केयरिंग. सम की बात है तो मतलब हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आएगा ये वाला सिंबल,
सिंबल इज दिस एंड x इज द वेरिएबल. आप x हमेशा पास ऑन कर सकते हो. जब कोई सिंबल आप पास ऑन नहीं करना चाहते तो x कर सकते हो. कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी कर सकते हो. द फ्रेंड्स इज लविंग एंड केयरिंग. फ्रेंड्स के लिए f आ गया एंड लविंग एंड केयरिंग. ठीक है ना. लविंग के लिए L, केयरिंग के लिए C, बट ऑल फॉर द x. मतलब x वेरिएबल ही डील करेगा कि फ्रेंड्स भी हैं, लविंग भी हैं, केयरिंग भी हैं. तो बहुत सिंपल नोटेशन इसकी बन जाएगी. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगेन वेरी सिंपल दैट ऑल मैमल्स आर फ्रेड. ऑल मैमल्स आर फ्रेड मीन्स ऑल का मतलब आपको समझ आ गया होगा. दिस इज द सिंबल ऑफ ऑल. मैमल्स के लिए M एंड फ्रेड के लिए L. इम्प्लीकेशन है कि फ्रेड जो है वो ऑल मैमल्स आर फ्रेड हो है. ऑल मैमल्स आर फ्रेड. फ्रेड एक कांस्टेंट है ना. कांस्टेंट है क्योंकि वो एक कैटेगरी है तो कांस्टेंट वैल्यू में चली जाएगी. सो ऑल मैमल्स आर फ्रेड, इसीलिए जो फ्रेड की वैल्यू है वो यहाँ आ रही है. कि इम्प्लीकेशन है कि ऑल मैमल्स आर फ्रेड हैं या नहीं है. तो फिर ये नोटेशन हमारी इस तरह से बन जाएगी. एंड नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट नोटेशन पार्ट. नेक्स्ट नोटेशन पार्ट में हम देखते हैं कि इट्स अ वेरी सिंपल. लाइक सम students in the ABC University has studied artificial intelligence. That is the statement given है. अब इसको हमें कन्वर्ट करना है तो कंसिडर करके हम चलेंगे. Let us consider that the domain consists of some students in the ABC University has studied artificial intelligence. कंसिडर कर रहे हैं हम डोमेन की. दैट द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. ABC यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को कंसिडर कर लो. डोमेन हमें दिया गया है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी और ABC यूनिवर्सिटी. ABC भी हो सकती है, XYZ भी कुछ भी ले सकते हो. इसकी जगह पे ABC भी ले सकते हो. जो डिक्लेयर कर दिया हो वही लेना. XYZ मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि सपोज करने के बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते. जो गिवन में है वही लेना पड़ेगा. गिवन में अगर ABC है तो ABC लेना पड़ेगा. आप कांस्टेंट इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में दोबारा चेंज नहीं कर सकते. सो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ABC यूनिवर्सिटी एंड द अजम्पशन क्या दी है उन्होंने दैट द X हैज स्टडीड AI. मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया सम स्टूडेंट्स. डोमेन कहता है कि सारे भी पढ़ सकते हैं, सारे ही पढ़ रहे होंगे यूनिवर्सिटी में, है ना. डोमेन हमारा इम्प्लीकेशन पे चल रहा है, बट इम्प्लीकेशन हमारी स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो सेंटेंस दिया गया उसके हिसाब से क्या कह रही है कि सम स्टूडेंट्स. सो सम स्टूडेंट्स ऑफ द ABC यूनिवर्सिटी, है ना. तो P ऑफ X हमने इसके लिए पहले ही ले लिया था. तो ये बड़ा सिंपल सा क्वांटिफायर है कि सम स्टूडेंट्स इन द ABC यूनिवर्सिटी. आपने ये भी बता देना है कि कंसिडर कर सकते हो. ऑल के लिए भी चल सकता था बट कंडीशन हमें दी गई थी सम के लिए, तो हमने सम के लिए ये पार्टिकल जो है वो चला दिया एज पर द सिलॉजिस्टिकल जो रूल है उसके लिए. सो द नेक्स्ट पार्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज पर द लेवल ऑफ द कंसिडरेशंस. सो कंसिडरेशंस को अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट है हमारे पास. कंसिडर द स्टेटमेंट. फर्स्ट 3 आर द प्रेमिसेस. मतलब ये 3 स्टेटमेंट्स हमारे प्रेमिसेस हैं एंड द नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है ये इसका कंक्लूजन है. ठीक है. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेड ऑल हमिंग बर्ड्स आर रिचली कलर्ड. ठीक है. सेकेंड कह रही है प्रेमिसेस क्या है, नो लार्ज बर्ड्स लिव ऑन हनी. थर्ड प्रेमिसेस क्या कहता है, बर्ड्स दैट डू नॉट लिव ऑन हनी आर डल इन कलर. तो कंक्लूजन क्या निकला इन 3 स्टेटमेंट्स के बाद कि हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल. पहला था हमिंग बर्ड्स रिचली कलर्ड के होते हैं सारे के सारे. फिर उन्होंने बोला कि नो लार्ज बर्ड्स लिव ऑन हनी, ज़्यादातर बर्ड्स हनी पे डिपेंड नहीं रहते. एंड बर्ड्स दैट डू नॉट लिव ऑन हनी, जो हनी पे डिपेंड नहीं रहते, उनका कलर जो है वो डल होता है. सो कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल. सो इसके लिए भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी. तीनों के लिए ही अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर होंगे. सो जो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होने जा रहा है वो है P ऑफ X. X इज द हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड तो सबसे पहले हमें बताना ही पड़ेगा ना. P ऑफ X, Q ऑफ X, R ऑफ X एंड S ऑफ X. 4 कंडीशन से हमने 4 ले लिया और X हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल रख लिया सबके लिए मिक्स करके कि ये हमिंग बर्ड के लिए हमेशा चलता रहेगा. कैटेगरी चाहे इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो या इसकी हो, ठीक है, कैटेगरी किसी की भी हो. तो फर्स्ट अजम्पशन है X इज हमिंग बर्ड. यस, X इज हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड इज लार्ज. X इज लार्ज. हमिंग बर्ड इज लिव्स ऑन हनी. मतलब बर्ड्स आर लिव्स ऑन हनी.
R of x कहता है x lives on honey and the other statement said that कि all hummingbirds are richly colored, so the S of x is मतलब x जो ले लिया हमने hummingbird के लिए, ये आ गया ना, hummingbird is richly colored, है ना, birds are living on herd। तो अगर इसको हमने नोटेशन में लिखना है, नोटेशन कहती है all hummingbirds are rich in colored, all hummingbird हम ये ले रहे हैं p of x, ठीक है ना, all rich in color, तो s of x, all of x, p of x and s of x, this is the notation। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है no large birds lives on honey, no large birds lives on honey मीन्स नेगेशन आना ही आना है। अब नेगेशन का सिंबल होता है ये वाला या ये वाला भी होता है, ठीक है। नेगेशन का सिंबल जब आएगा तो all birds आएंगे, no large birds lives on honey मीन्स पहले हमें चेक करना पड़ेगा all birds, देन हम कहेंगे कि x is large, कुछ लार्ज होते हैं बीच में से, है ना, कुछ होते भी हैं और कुछ नहीं भी होते, जो हनी पे नहीं डिपेंड करते वो नहीं होते, और फिर हमारा आ जाएगा इधर नेगेशन, ठीक है। अगर इसको और आपने ज़्यादा पढ़ना होगा तो मैं आपको एक पार्ट और दिखा देती हूँ। दिस इज़ द पार्ट कि जब हमारे पास ऐसा कोई पार्ट आ जाता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने सम की भी बात की हुई है, नो लार्ज बर्ड्स की भी बात की हुई है ना, तो आपने नेगेशन जो देना है वो QX के साथ भी दे सकते हो, इसके साथ भी दे सकते हो। जब नेगेशन दोनों के साथ दे सकते हो तो फिर नेगेशन जब एज पर द रूल ऑफ टेलर्स, यहाँ पीछे आप देख लेना FOPL का रूल भी यही कहता है कि आप इसको बाहर लेके आ सकते हो नेगेशन को। कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म भी हमने पढ़ रखी है, कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म को देख लीजिए, डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म को देख लीजिए, वो भी यही कहती हैं, है ना। तो ये आ जाएगा बाहर और ये हमारा सिंबल आ जाएगा अंदर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा क्योंकि वो कहता है नो लार्ज बर्ड्स लिव्स ऑन हनी, तो नो के मीनिंग में कुछ हो सकते हैं, कुछ रहते भी हों, जो हनी ले लें वो रह लेंगे, जो नहीं लेते वो नहीं रहेंगे, ऐसी भी असम्पशंस बन सकती हैं। ये हम आगे वाले पार्ट्स में भी देखेंगे जब हम पार्ट रेजोल्यूशन का पढ़ेंगे, जिसमें कन्वर्जन होनी ही होनी है CNF की या FOPL की कंजम्पशन के लिए, तो उसमें भी ये चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी कि कैसे CNF को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हम आते हैं इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट पे। रेस्ट ऑफ द पार्ट यही कह रहे हैं आपको, नेक्स्ट असम्पशन है बर्ड्स दैट डू नॉट लिव ऑन हनी, बर्ड्स दैट डू नॉट लिव ऑन हनी। हनी के लिए हमने यूज किया है R of x, डू नॉट, नॉट का मतलब नेगेशन, ऑल तो आना ही आना है सबके साथ क्योंकि ऑल की तो स्टार्टिंग से ही बात कर रहा है, ठीक है। नॉट लिव ऑन हनी, है ना, एंड हनी आर डल इन कलर, डल इन कलर के लिए हम कह रहे हैं ऑल ही रिचली कलर्ड को कह रहे हैं कि जो हनी पे डिपेंड ही नहीं रहते वो डल है, तो फिर ये नेगेशन इसके साथ भी आना है। लास्ट है कि हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल, हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल भी आ सकता है कि आपने स्टार्टिंग पे ही ले लिया है वैसे। और ये जो लास्ट असम्पशन है ये हमारी असम्पशन कहती है कि जो हमिंग बर्ड्स हैं एंड पार्ट जो नहीं है हमिंग बर्ड्स, कुछ हो सकते हैं ना, प्रूव करना हो तो देखो प्रेडिकेट लॉजिक का रूल ये है कि अगर उसने आपको प्रूव करने के लिए कहा कि ऑल हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल, तो आपने नेगेशन लेके चलना है, सपोज करके, जैसे मैथमेटिक्स में नहीं हम चलते वैसे ही आपने नेगेशन लेके चलना है कि नहीं हमें अभी नहीं पता, बट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बताएगी 1 by 1 चेकिंग कर करके कि कुछ ऐसा है या नहीं है। तो हमें अभी इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन ही करनी थी, तो ये होते हैं ट्रांसलेशन के रूल। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स ऑलरेडी हम वैसे पढ़ चुके हैं, बट लिटिल बिट नॉलेज ऑफ द सेमेंटिक्स अवेलेबल इन द शॉर्टर वीडियो बाय द yesterday's portion among the morning. So those students who don't see all the videos of artificial intelligence and the logic lab, kindly see that all the videos and you will grab the good knowledge. And if you have any question, any query, kindly comment into the comment box. So next video available will uploaded very soon on this channel. Until then, take care. God bless to all of you. Thank you.